اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو ہم لوگ پہلی ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب الطہارہ۔ اس میں کتاب الصوم آئے گی، کتاب الزکوٰۃ آئے گی، کتاب الجہاد آئے گی۔ تو جہاد کے آپ کو کس سے جہاد، کیسے جہاد، کتاب الخمس آئے گی۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اجارہ آئے گی، کتاب اجارہ ہے، ہاں غالباً نہیں، تجارہ، کتاب التجارہ پڑھائی ہے میں نے، اس میں تجارت کے احکام اس میں آئیں گے۔ اب آ جائیے مولانا، کل ہم لوگ پہنچے تھے ولا یصح طلاقها، اور حالت حیض میں اس کے شوہر کے لیے طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ ولا یجب علیہا قضاء الصلاۃ، حائض پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ ولا یجب علیہا، اور اس پر واجب نہیں ہے قضاء الصلاۃ، نماز کی قضا۔ ویجب قضاء الصوم، اور واجب ہے روزے کی قضا۔ صحیح ہے، وہ روزے کے جو حالت حیض میں چھوٹ گئے تھے۔ اب آ جائیے وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، فرق دیکھیے گا مولانا، حالت جنابت میں 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ تھا، لیکن وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، سور عزائم کے علاوہ باقی سورے کا، باقی قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ کل ہی ہمارے یہاں سوال مسجد میں یہ اٹھا کہ کیسے ممکن ہے، کہا کہ عورتوں میں ایک صاحبہ جو ہیں قرآن خوانی میں رمضان میں آتی تھی، کہا وہ پورے مہینے آئی، پورے مہینے قرآن کی تلاوت کرائی۔ تو ہم نے کہا بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے کیسے کرایا۔ دیکھیں نہ، قرآن کا پڑھنا تو مکروہ ہے حالت حیض میں، لیکن قرآن خوانی جب ہم کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ ہمارا ٹچ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اتنا چاہے کتنا بھی انسان محتاط رہے، چاہے کہ ہاتھ نہ لگے، 1 دن نہیں لگے گا، 2 دن نہیں لگے گا، لیکن قرآن کو لگ ہی جانا ہے، کہیں نہ کہیں ہاتھ اس کا ٹچ ہو جانا ہے۔ صحیح ہے، ایسے میں چاہیے کہ احتیاط کرے، ایسی چیز کو انسان رواج نہ دے۔ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ کیوں کرنا؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بیریئر ہے، بیریئر۔ مکروہ جانتے ہیں کیوں ہیں؟ ملا کے احکام کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ ملا کے احکام ہیں، جب آپ اصول پڑھیں گے تو پڑھیں گے اس کو۔ ملا کے احکام یہ ہوتا ہے، واجب وہ چیز ہے کہ جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، اس کے پیچھے کا ملا کیا کہ اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور اتنا پسند کرتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کام کو چھوڑے، اس لیے اس نے کیا کر دیا؟ واجب۔ حرام کو ایک دم ناپسند کرتا ہے، اس کے نقصانات کی وجہ سے، جس کی بنا پہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اسے انجام دے، اس لیے اس چیز کو کیا کر دیا؟ حرام۔ مستحب کو بھی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کرے، لیکن اس میں وہ چاہت نہیں ہے جو چاہت واجب والے میں تھی، اس میں اس سے کم ہے۔ چاہتا ہے کہ کرے گا تو اچھا ہے، اسی لیے اس کو واجب نہ کر کے کیا کر دیا؟ مستحب۔ مکروہ وہ ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے نہ کیا جائے، لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، صحیح ہے، اس پر گناہ نہیں رکھا اللہ نے، لیکن اللہ کی ناپسندیدہ شے ہے۔ مکروہ کے معنی کیا ہیں؟ ناپسندیدہ شے، صحیح ہے نا، جس سے اللہ کیا کر رہا ہو؟ پسند نہ کر رہا ہو۔ تو ملاک وہاں بھی ہے جو حرام میں ہے، وہی چیز مکروہ میں ہے، اللہ کی نفرت، اللہ کی ناپسندیدگی، لیکن ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے۔
कम वाला मकरूह हो गया, ज्यादा वाला हराम हो गया। इसी तरह वाजिब और मुस्तहब है कि अल्लाह जिसे ज्यादा पसंद करता था उसे वाजिब कर दिया, जिसे थोड़ा कम पसंद करता था उसे मुस्तहब कर दिया। तो है तो बना पसंदीदा खुदा का। तो ये क्या बॉर्डर है। जब हम मुस्तहब छोड़ते हैं, आज हमने मुस्तहब छोड़ा, मुझे बताइए आप अगर सुबह की नाफिला पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, जोहर असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, मगरिब की नाफिला पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, इशा की नाफिला पढ़ते हैं, नमाज शब पढ़ते हैं। किसी दिन सुस्ती आएगी तो आप क्या करेंगे? मुमकिन है आप मगरिब की नाफिला न पढ़ें, नमाज शब न पढ़ें, लेकिन जो वाजिब है आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप खाली वाजिब वाजिब अंजाम दे रहे हो, अब क्या अगर सुस्ती आएगी तो क्या छूटेगा? वाजिब छूट जाएगा। समझ में आया? तो ये मुस्तहब वाजिब के लिए बैरियर है और मकरूह हराम के लिए बैरियर है। अगर हमारी जुर्अत बढ़ जाए कि मकरूह काम को अंजाम देते देते, तो यही गुनाह सगीरा में तब्दील हो जाता है। और जब हमारी जुर्अत बढ़ जाती है तो एक दिन हराम काम करने से भी हम गुरेज नहीं करते। ये है, इसलिए मकरूह है तो चाहिए कि इंसान क्या करे? एहतियात करे, उसे अंजाम न दे। गलत रस्म रिवाज नहीं पानी चाहिए। अब वो खातून, वो मोमिना जो भी थी जिन्होंने कुरान खानी हमारी मस्जिद में करवाई थी, कल ही बात हो रही थी इत्तेफाक से कि क्या मौलाना ऐसा मुमकिन है कि किसी को पूरे महीने एमसी ना आए? मैंने कहा दवाएं आती हैं, दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ खवातीन जब तवाफ के लिए, हज के लिए जाती हैं तो इस्तेमाल करती हैं ताकि अपने पीरियड्स को थोड़ा आगे बढ़ा दें। ऐसा कुछ किया हो तो अलग मसला है। अगर जिनको थायराइड होता है उनका भी मसला होता है, उनको थायराइड जिनको है कि मकरूह है, मकरूह है वयुकरहु क़िराअतु मा अदल अज़ाइम, यानी अज़ाइम समझ में आ रहा मौलाना, जिसमें सजदा वाजिब है। सही है, तो वाजिब है तो कहा उन सूरों को छोड़ के बाकी कुरान की एक आयत का भी पढ़ना मकरूह है। वमस्सुल मुसहफ़े, मुसहफ को छूना ऊपर से ही मौलाना मकरूह है, यानी कुरान करीम को छूना। मुसहफ क्या है? कुरान करीम। वहम्लिही, और उसको क्या करना? उठाना, कुरान मजीद का उठाना। वल खिताब, और क्या करना? खिताब करना, मेहंदी लगाना। वल वत्यु क़ब्लल गुस्ल, और गुस्ल हैज़ से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना, यानी जिमा करना। वल इस्तिमताउ मिनहा मा बिमा बैन सुर्रति वर रुकबा, और जो उसके नाफ और घुटने के दरमियान से लुत्फ अंदोज होना मकरूह है। वल इस्तिमताउ मिनहा यानी मिनल हाइज़े, हाइज़ से लुत्फ अंदोज होना, बीमा बैन सुर्रा, सुर्रा कहते हैं नाफ को, वर रुकबा, रुकबा कहते हैं घुटने को, यानी जो हिस्सा नाफ और घुटने के दरमियान है उनमें से लुत्फ अंदोज होना। अब देखें, अब आ जाता है मुस्तहब्बात। वयुस्तहब्बु लहा अल-वुदू लिकुल्लि सलातिन फरीदा, और मुस्तहब है कि वो हर वाजिब नमाज के लिए वुजू करे। लेकिन क्या ये वुजू राफ़िअ लिल हदस होगा? नहीं, बल्कि ये वुजू सिर्फ और सिर्फ मुस्तहब करार दिया गया है। वल जुलूसु फी मुसल्लाहा, और बैठना अपने मुसल्ले पर, यानी जहां वो नमाज पढ़ती है वहां बैठे।
ज़ाकिरतन बिक़द्रि सलातिहा, जिक्र करते हुए नमाज की मिक़दार में। मसलन तस्बीह में अल्लाहु अकबर सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ती रहे, सही है, कोई और जिक्र पढ़े, लेकिन इतनी मिक़दार कि जितनी मिक़दार में उसकी नमाज मुकम्मल होती है उतनी देर बाद वुज़ू हो के मुसल्ले पर बैठना उसके लिए क्या है, मुस्तहब है। इसमें देखें एक तरबियती पहलू भी मेरी निगाहों में आता है। तरबियती पहलू इस निगाह से कि घर में छोटे बच्चे हैं, छोटा भाई है, सही है, उनके जहनों में ना आए कि हमारी अम्मी तो हमारी बहन तो रोज नमाज पढ़ती थी, इस दिन से नमाज नहीं पढ़ रही है, सही है, हमारी बहन नमाज पढ़ती थी अभी नमाज नहीं पढ़ रही है। तो क्या है, जैसे वो वुजू करके रोजाना नमाज पढ़ती थी, मुसल्ले पे बैठती थी, उसी तरह से वो वुजू करे और वक्त नमाज या जब भी उनका वक्त होता हो उस वक्त नमाज पर बैठ जाए। तो उससे क्या है, घर में रहने वालों को कभी भी ये इल्म नहीं होगा कि कौन किस हालत में मौजूद है। तो एक तरबियती पहलू भी पाया जाता है, सही है। तो मुस्तहब है कि वो हर नमाज के लिए क्या करे, वुजू करे, अपने मुसल्ले पर बैठे और इतनी मिक़दार में ज़ाकिरतन मौलाना हाल है, सही है, कि जिक्र करते हुए बेक़द्र सलातिहा, अपने नमाज की मिक़दार में। अब इसके बाद आ जाएगा अल-फ़स्लुस्सालिस, तीसरी फसल फिल इस्तिहाज़ते, इस्तिहाज़ा में। इस्तिहाज़ा कोई अलग से खून नहीं है, कोई मुअय्यन खून नहीं है, लेकिन जो मुद्दत हमने बताई उस मुद्दत के अलावा अगर खून आ रहा है, जो हैज़ की मुद्दत बताई 3 दिन और कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10, आगे हम निफास को देखेंगे, निफास की कम से कम मुद्दत 1 लहजा है और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है, सही है। 10 दिन के बाद भी अगर खून आ रहा है तो वो खून निफास का नहीं होगा बल्कि इस्तिहाज़ा का होगा। और ये देखें हमारे समाज में काफी जैसे एक रस्म मनाई जाती है कि 40 दिन पे नहाना बच्चे की विलादत के बाद, सही। अब 40 दिन पे नहाना मैक्सिमम शरीयत के एतबार से निफास कितने दिन का है, 10 दिन का। 10 दिन के बाद भी अगर खून आ रहा है तो उस पर इतलाक इस्तिहाज़े का होगा। और इस्तिहाज़ा के अपने अहकाम हैं, कलीला, कसीरा और मुतवस्सिता के एतबार से। उसमें अगर वो तमाम उमूर जो शरीयत ने बताए हैं उसे अंजाम दे तो वो बिल्कुल वैसी खातून है जैसी एक आम खातून होती है जो पाको पाकीज़ा हो, मस्जिद में जा सकती हो, समझ रहे। उसको नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ सकती है, सब जो अहकाम बताए गए वैसे। तो अब आइए देखते हैं अल-फ़स्लुस्सालिस फिल इस्तिहादति व हुवा फिल अग़लब। ये पहले अलामत बता रहे हैं मौलाना, व हुवा फिल अग़लब, इसमें क्या मस्जिद वाला मसला, अब क्या हम उसमें क्या बताएंगे, हमारा मसला थोड़ी था कि हम बताएंगे, वो दिमाग में चले जा रहा है लेकिन ना कौन वो गुस्ल जिनका क्या है असबाब है, इंशाअल्लाह आएगा मुस्तहब गुस्ल में आएगा, वो गुस्ल जिसका क्या है सबब है, जैसे गुस्ल जुमा, गुस्ल ईद, गुस्ल बकरीद, शब कद्र का गुस्ल, वो गुस्ल सिस्तानी साहब के फतवे के मुताबिक क्या है, वुजू की किफायत करते हैं। खामनई साहब क्या वो भी नहीं करते, उसमें आपको वुजू करना है और गुस्ल के बाद सिवाय गुस्ल जनाबत के। कुछ लोग ऐसे थे, सवाल आए ना मेरे पास रमजान में, वैसे ही हम नहा रहे हैं, नहा के कोई नियत करके ऊपर बताए अल्लाह के गुस्ल कर लें, तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं ऐसे ही? मर्जी का नहीं, बिना सबब के गुस्ल जनाबत आप कैसे कर सकते हैं? और अपनी मर्जी का थोड़ी है। ये बहुत अच्छी जो है कल की तकरीर किसकी थी, तो एक तकरीर सुन रहा था, हाँ, अली मुर्तजा सैदी साहब की।
अली मुर्तजा जैदी साहब ने कहा अल्लाह ने बुत को क्या करार दिया है, बुत पूजा हराम करार दी है ना। वहीं पे खाने काबा का तवाफ, हजर अस्वद का चूमना, खाने काबा को बूसा देना क्या है, मुस्तहब है। बुत की पूजा हराम है, खाने काबा का तवाफ जायज, वाजिब है, बल्कि करना ही करना है। हजर अस्वद को बोसा देना मुस्तहब है, काम तो वही है ना, ये अलग है, वही है। कहा इबादत वो है जो अल्लाह के मुताबिक की जाए, अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, बुत पूजा। अल्लाह के मुताबिक अगर करेंगे तो वही क्या हो जाएगी, इबादत। समझ में आया, कितना अच्छा पॉइंट है। शरीयत को शरीयत के एतबार से करेंगे तो इबादत है, अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हमारे लिए अजाब का सबब बन जाएगा। काम वही है, लेकिन अगर हम पत्थर रख के करेंगे तो क्या है, वो मूर्ति पूजा। जैसे जनाब अगर आम दिनों में अगर नहाने से भी है, अब नहा रहे तो अगर वो गुस्ल करेंगे, आप कर ले गुस्ल, कोई मुश्किल नहीं है कि आपने कुर्बतन की नियत से, कुर्बतन अल्लाह का गुस्ल करता हूँ, कुर्बतन अल्लाह, आपने सर व गर्दन धुल लिया, दाया हिस्सा धुला, बाया हिस्सा धुला, लेकिन ये गुस्ल वुजू की किफायत नहीं करेगा, अलग से आपको वुजू करना है आम दिनों में, ये याद रहे। तो वही है कि अपनी मर्जी के मुताबिक हमारा नहीं है, नहीं कहा कि हमने अभी चलो वुजू के बाद जो है हमें वो नहीं करना है, गुस्ल जनाबत के बाद वुजू नहीं करना है, तो हम अभी नहा रहे हैं, हम पे गुस्ल जनाबत वाजिब नहीं है, फिर भी हम क्या कर ले, गुस्ल जनाबत के, हम नहा रहे हैं सोमवार को, हमने गुस्ल जुमा की नियत कर ली, तो गुस्ल जुमा की नियत से नहा रहे हैं, तो अपनी मर्जी से थोड़ी हो जाएगा। इबादत वो है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक की जाए, याद रखिएगा। बहुत अच्छा नुक्ता लगा मुझे उनका ये। जनाब इसकी जो मुद्दत रहती है, जितने दिन रहते हैं, उसमें कभी भी आ जाता है, कभी भी आता है। कह रहे वहुवा फिल अगलब दमुन अस्फर बारिदुन रकीकुन तराहु बाद अय्यामिल हैज। देखिए मौलाना, अगर हैज की अलामतों से देखेंगे तो वहां क्या था, वहां था दमुन अस्वद गलीजुन, सही है, यखरुजु बिहिरकतिन व हरारतिन, यहाँ क्या कहा, फिल अगलब ज्यादातर दमुन अस्फर पीला खून, बारिदुन ठंडा, रकीकुन पतला, वहां क्या था गलीजुन, बारिदुन की जगह क्या था, बेहरारतिन, हरारत के साथ। और यही वो अलामत बनने वाली है, जैसे हमने कहा था 10 दिन से ज्यादा खून आ रहा है तो क्या करे, तमीज की तरफ पलटे। तमीज क्या है, तमीज यही है कि दोनों खूनों की अलामतें बताई गई हैं, अलामत की बुनियाद पर अगर फर्क हो सकता है तो उसे फर्क करे और उसके मुताबिक अमल करे। तराहु बाद अय्यामिल हैज, सही है, जिससे वो अय्याम हैज के बाद देखे। मसलन किसी के अगर 5 दिन है, 5 दिन के बाद भी अगर खून आ रहा है, किसी के 7 दिन है, 7 दिन के बाद भी अगर खून आ रहा है, तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो खून आया उसे इस्तिहाजा कहा जाएगा। और देखें वह अय्याम निफास, और किसके बाद आए मौलाना, निफास के बाद आए। जैसे निफास की मुद्दत हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, एक लहजा, जैसे कम से कम मुद्दत है इसकी 3 दिन है, लेकिन निफास में क्या है, बच्चे की विलादत के बाद मुमकिन है एक लम्हा आए, मुमकिन है ना आए, और मैक्सिमम जो आए कितना दिन, 10 दिन, सही है। तो उसके बाद भी अगर खून आ रहा है तो क्या होगा, वो इस्तिहाजा होगा। अब बअदल यास, बअदल यास, यास किसको कहते हैं, यास उस उम्र को कहते हैं कि जिसमें हैज आना बंद हो जाता है,
जो आम खवातीन के लिए हमने पढ़ा 50 साल, और नबती और करशी के लिए पढ़ा 60 साल। यानी अगर सैदानी है तो 60 साल उसका सिन्यास है, और अगर कोई गैर सैदानी है तो उसका 50 साल सिन्यास है। तो जब हैज आना बंद हो जाए, चाहे इस उम्र के अलावा भी हो, तो वो सिन्यास होगा। सिन्यास के बाद भी अगर कभी खून आए तो वो खून भी क्या कहलाएगा? इस्तिहाजा कहलाएगा। अब इसके अहकाम इंशाअल्लाह कल आएंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।